ذمہ داری انسان کی ایک امتیازی صفت ہے۔ یہ ایک ایسی صفت ہے جسے وہ باہر سے لینے سے پہلے خود اپنی فطرت انسانی سے حاصل کرتا ہے۔ ہر انسان کو کسی نہ کسی صورت میں ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، اور طبیعت جتنی زیادہ پاکیزہ ہوگی، ذمہ داری کا شعور بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ ایشیا میں 24 کے ساتھ میں شوکت ساحل۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ حد بندی کمیشن سری نگر وارد، مشاورت کا سلسلہ شروع۔ پی ڈی پی اے این سی نے حد بندی کمیشن سے کی دوری اختیار۔ اور یوم حاجنی کے موقع پر حاجن میں تقریب کا انعقاد۔ 5 رکنی حد بندی کمیشن آج دوپہر کمیشن کے سربراہ جسٹس آر رنجنا پرکاش دیسائی کی قیادت میں سری نگر پہنچ گیا۔ کمیشن میں چیف الیکشن کمشنر سشیل چندر اور جموں کشمیر کے اسٹیٹ الیکٹورل آفیسر کے کے شرما بھی شامل ہیں۔ سری نگر پہنچتے ہی کمیشن سیدھے للت ہوٹل پہنچ گیا، جہاں وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندوں سے ملاقات ہوا۔ ایک بہت بڑی ایکسرسائز جموں کشمیر کے اندر جو ہو رہی ہے ڈیلیمیٹیشن کمیشن کے نام سے، ہمیں ڈیلیمیٹیشن کمیشن نے بلایا ایز اے کانگریس پارٹی، اور ہم نے اس کو سوچ سمجھ کے ساتھیوں کے ساتھ ڈسکشن کرنے کے بعد ریسپونڈ کیا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم آج ڈیلیمیٹیشن کمیشن کے سامنے آئے، اور ہم نے ان کو کمپلیٹ اپنا جو موقف تھا وہ ان کو بتا دیا۔ حالانکہ جو چیزیں ان سے ریلیٹڈ بھی نہیں تھی، ان کا لمیٹڈ کام ہے ڈیلیمیٹیشن کا، اور مگر ہم نے ان کو 5 اگست 2019 سے لے کر ہماری بنیاد جو ہے کہ ڈیلیمیٹیشن بنتا ہی نہیں تھا۔ یہ ڈیلیمیٹیشن جو آج آپ کرنے آئے ہیں، یہ ری آرگنائزیشن جو ہوئی ہے 2005 اگست میں 2019 میں، یہ اسی کی وجہ سے نکل آئی، ورنہ پورے دیش میں پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے کہ 2026 تک کوئی ڈیلیمیٹیشن نہیں ہوگا۔ ایک طرف دیش کا پردھان منتری اور ان کی جماعت کہتی ہے ایک ودھان، ایک پردھان، ایک سمویدھان، یہ تو پورے کان بھر لیے اس نے کہہ کر۔ اب اگر ایک طرف آپ ایک ودھان ایک پردھان کر رہے ہیں، کیا موجودہ سرکار نے اس کو خود ہی ترمیم نہیں کیا؟ یہ کر کے اگر پورے دیش میں 2026 میں ڈیلیمیٹیشن ہونا ہے، جموں کشمیر میں آج 2021 میں ہی ڈیلیمیٹیشن کیوں ہو رہا ہے؟ کل تک جب ہم یہ بات اٹھاتے تھے کہ جموں کشمیر ایک پیکولر سچویشن ہے، ایک سینسٹیو سچویشن ہے، وہ ان کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ آج ایک نئی شروعات خود نریندر مودی اور اس کی جماعت نے کی، جبکہ لوگوں نے نہیں کی، یہ کر کے کہ اگر پورے دیش میں یہ ہونا ہے 2026 میں، جموں کشمیر میں 2021 میں کیوں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اور جب تک نہ واپس 5 اگست کے فیصلے، خاص کر ریسٹوریشن واپس نہیں ہوگا، فل اسٹیٹ ہوڈ نہیں آئے گا، ان ایکسرسائزز کا جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے کوئی خاص معنی نہیں ہے۔ جموں کشمیر CPIM کا سیکرٹری ہوں، اور ہم 5 آدمیوں کا ڈیلیگیشن تھا۔ ہم نے ان سے بھی کہا کہ آپ جو رپورٹ پیش کر لیں گے وہ کریڈیبل ہونا چاہیے، اس سے اعتماد پیدا ہونا چاہیے، وہ یہاں کے لوگوں کے جو ایسپریشنز ہیں اس کے مطابق ہونا چاہیے، اور سب سے بڑی بات کہ یہ رپورٹ جب پبلش ہوگا، حالانکہ انہوں نے یقین دے دیا کہ ہم یہ پبلش کر لیں گے، پہلے لوگوں سے اوپینین لے لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم کمپائل کر لیں گے، فائنل رپورٹ اس کے بعد دے دیں گے۔ یہ ایک بڑی اچھی بات وہاں سے نکلی، مگر ہم نے بتا دیا کہ جو 5 اگست کو ہوا یہاں پر، 5 اگست 2019 کو، ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے، دیٹ از ان ایکسیپٹیبل، اور جموں کشمیر کو اسٹیٹ ہوڈ ملنا چاہیے، اس کے بعد الیکشن کرنے ہیں یا کیا کر رہے ہیں آپ لوگوں نے، وہ اس کے بعد ہونا چاہیے، مگر پہلے اسٹیٹ ہوڈ اینڈ دیٹ فل اسٹیٹ ہوڈ جو ہم سے چھینا گیا 5 اگست 2019 کو، یہ بات ہم نے ان سے کی۔ نہیں، ہم نے 2011 کا جو سینسس ہوا اس کے مطابق ہی ڈیلیمیٹیشن ہو رہی ہے، اور ہم نے بھی یہی مانگ رکھی ہے کہ 2011 جو
सेंसस हुई है उस बेस पे ही डिलिमिटेशन होनी चाहिए, लेकिन डिलिमिटेशन 1995 वाली नहीं, जब दो फैमिली को यहाँ फायदा पहुंचता था उस बेस पे यहाँ डिलिमिटेशन हुई चाहिए। उनका स्टैंड हमेशा बदलता रहता है। जब 370 उठा तब उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और डीडीसी इलेक्शन उन्होंने लड़ा। अब जब परसों ऑल पार्टीज मीटिंग प्रधानमंत्री जी की निवास पर हुई, उन्होंने बुलाई थी, तब सारी पार्टियां गई थी और उन्हीं पार्टियों ने उस वक्त ऐलान किया था कि इलेक्शन जल्द होना चाहिए। जब अब उसकी प्रोसेस शुरू हो गई तो उन्होंने फिर अपना स्टैंड चेंज किया, अपने आप को रिलेवेंट करने के लिए उन्होंने हमेशा स्टैंड बदला है। आज भी उन्होंने ये किया, एक रिलेवेंट अपने आप को रखने के लिए उन्होंने स्टैंड बदला है, उनका कोई स्टैंड नहीं है। जराये से मालूम हुआ है कि हदबंदी कमीशन कल यानी बुध को जनूबी कश्मीर के डाक बंगलो, पहलगाम में पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग और कुलगाम के जिला कमिश्नर्स जो मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर भी हैं के साथ मीटिंग करेगा। जम्मू सूबे के किश्तवाड़, डोडा, रामबन के अफसरान से 8 जुलाई को, जबकि जम्मू, सांबा, कुठवा, रियासी, राजौरी और पुंछ के साथ जम्मू में एक निजी होटल में कमीशन मुलाकात करेगा। हदबंदी कमीशन का क़याम मार्च 2020 में किया गया था और मार्च 2021 में आलमी वबा कोरोना वायरस के तनाजुर में इसकी मुद्दत में 1 साल की तोसी की गई थी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने हदबंदी कमीशन के नाम एक खत लिखकर कमीशन से न मिलने का फैसला करते हुए कहा है कि वो हदबंदी कमीशन का बायकॉट करती है। पार्टी ने अपने खत में लिखा है कि ये कमीशन दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद कायम किया गया है, लिहाजा गैर कानूनी और गैर आईनी है। इस हवाले से पार्टी तर्जुमान सुहेल बुखारी ने नामानिगारों से बात करते हुए हदबंदी के अमल पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि मुल्क भर में यह अमल साल 2026 तक नहीं होना है तो जम्मू कश्मीर में जल्दबाजी का मुजाहरा क्यों किया जा रहा है। ये कई खदशात को जन्म देता है। 5 अगस्त 2019 को जो कुछ हुआ, जिस तरह से 370-35A को जम्मू कश्मीर के अवाम से छीना गया, उसके बाद से अभी तक बतदरीज जिस तरह के इक़दाम सरकार की तरफ से हुए हैं, उनमें कहीं ना कहीं झलकता है कि उससे जम्मू कश्मीर के अवाम जो हैं फर्दर डिसम्पावरमेंट की ओर जा रहे हैं। आप देख लीजिए, चाहे वो डोमिसाइल को लेके जो प्रोसेस हुई है, जिस तरीके के ऑर्डर्स आए, हमारी रिसोर्सेज की टेंडरिंग वगैरह का जो मसला है उसका जो हुआ हो, रिसेंटली आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में जो नए रिक्रूट्स सरकारी नौकरी में आते हैं उनकी स्क्रूटनी को लेके जिस तरह के अमेंडमेंटेड ऑर्डर आया, जिसने कि पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम को ही मशकूक बना के रख दिया, या फिर रिसेंटली ये दरबार मुँह का जो मामला है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप इस पर सरसरी नज़र डालें तो आपको लगेगा कि यके बाद दीगरे जो है जम्मू कश्मीर के अवाम जिन चीज़ों से डिसम्पावर हो रहे हैं वही सारे इक़दाम आ रहे हैं। तो आज ये जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है, इसको लेके भी यही तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि दिस इज़ गोइंग टू बी येट अनदर एडिशन टू दैट होल प्रोसेस। एक एडिशनल चीज़ हो रही है जो फर्दर डिसम्पावरमेंट की ओर जम्मू कश्मीर के अवाम को लेके जाएगी। इस दौरान अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी हदबंदी कमीशन से न मिलने का फैसला लिया है। पार्टी तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि कमीशन के क़याम को अदालत उज़्मा में चैलेंज किया गया है, लिहाजा वो अदालती मामलात में मुदाखलत की मुर्तकिब नहीं होना चाहती है। दरियास्तां ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन जगमोहन रैना ने कहा कि वो कमीशन से मुलाकात के दौरान ऐवान असम्बली में सिखों की नुमाइंदगी के हवाले से अपनी बात रखेंगे। मैं तो इसलिए जा रहा हूँ, मेरा मुद्दा तो एक है कि मैं जनरलाइज ज़रूर करूँगा कि हर तबके को, हर कॉन्स्टिट्यूंसी को इसी एंगल से दिया जाए जिससे एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो। लेकिन मैं वहाँ पर अपनी सिख माइनॉरिटी की बात करने जा रहा हूँ कि साहब हमारी पॉपुलेशन जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर में स्कैटर्ड है बहुत जगहों पर, लेकिन वही मैटर्स इन 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज जहाँ पे हमारा वोट बैंक 12-15 हज़ार से कई ज़्यादा है, पर हमें आज तक किसी जगह कॉन्स्टिट्यूंसी में एक MLA चुनने की वो गुंजाइश नहीं बनती। तो हम इनसे यही कहेंगे कि साहब हमारे लिए, आप सिखों के लिए चाहे जम्मू में, कश्मीर में 2-2, 3-3 सीटें जो हैं वो रिजर्व कर दीजिए, ताकि हम अपने पॉलिटिकल नुमाइंदा वहाँ चुन सकें जो हाउस में जाके हमारी बात करे। क्योंकि हमारे 40-50 साल से आपने देखा कि जितने भी इशू हमने रेज किए उनमें से किसी पर एड्रेस नहीं हुआ। सबसे बड़ी वजह यही थी कि हमारी पॉलिटिकल कहीं भी से नहीं, और से जो होती है वो असेंबली सेगमेंट में होती है। तो इसलिए हमारी तो वहाँ यही डिमांड उनसे होगी कि हमें भी इस डिलिमिटेशन में या कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व कीजिए या कॉन्स्टिट्यूंसी बना के दीजिए। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में तैनात वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वाज़ेह किया है कि जम्मू कश्मीर में पहले असेंबली नशस्तों की असर 9 हदबंदी होगी और फिर इंतखाबात होंगे।
एक न्यूज़ पोर्टल के साथ अपने इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा मुनासिब वक्त पर बहाल किया जाएगा, जैसे कि वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट में ऐलान किया है। उनका ये भी कहना था कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात मुनक्कद कराने में बीजेपी हायल नहीं है, बल्कि ये फैसला कमीशन को करना है। किश्तवाड़ पुलिस ने गुज़िश्ता 13 बरसों से मुबैना तौर पर मफरूर एक साबिक जंगजू को शालीमार किश्तवाड़ से गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि एक मुसद्दिका इत्तला मिलने पर कार्रवाई करते हुए पुलिस स्टेशन अथोली की एक टीम ने इंस्पेक्टर सोहन सिंह की सरबराही में कई मुश्तबा मकामात पर छापे मारे और शालीमार किश्तवाड़ इलाके से गुज़िश्ता 13 बरसों से मफरूर एक साबिक जंगजू को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शुदा की शिनाख्त नईम अहमद वल्द बशीर अहमद साकिन किश्तवाड़ के बतौर हुई है। हाजा बांडीपोरा में आज हल्का अदब सोनावारी हाजन की तरफ से योम महिदीन हाजरी मनाया गया। इस सिलसिले में मुनक़्क़द तकरीब में वादी के दर्जनों अदीबों, कलमकारों और दानिश्वरों ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर अजीज़ हाजनी को उनकी कश्मीरी ज़बान और अदब और लसानी तहरीक के तई गरां कदर खदमात अंजाम देने पर खलअत हाजनी 2021 से नवाजा गया, जबकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर महराजुद्दीन को सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर में शोबा कश्मीरी कायम करने के लिए सनद तौसीफ अता की गई। सबसे बड़ा खराज यही होगा हाजनी साहब को कि हम कश्मीरी ज़बान को ज़िंदा रखें, इसके तहफ़्फ़ुज़ और तरवीज के लिए काम करें, क्योंकि उन्होंने पूरी उम्र, हालांकि वो अंग्रेज़ी भी जानते थे, फ़ारसी भी जानते थे, अरबी भी जानते थे, उर्दू पर भी दस्तरस थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कश्मीरी ज़बान को तरजीह दी। तो अगर हमें उनको खराज अक़ीदत पेश करना है तो हमें अपनी ज़बान को बचाना है, इसको महफूज रखना है और इसको तरजीह देनी है। और आज इस मौके पर मुझे यहाँ खलअत हाजनी 2021 से नवाजा गया। मैं अपने आप को नहायत ही खुशनसीब समझता हूँ। इसलिए मैं आज ये समझता हूँ कि आज की इस तकरीब में जो अदीबों के साथ साथ सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है, इन सब को देखते हुए मुझे लगता है कि कश्मीरी ज़ुबान की जो लिसानी तहरीक है वो आगे बढ़ेगी, तरक्की करेगी और तरवीज पाएगी। एशिया में 24 में आज इतना ही। कल दोबारा हाजिर होंगे। आप किसी भी खबर और अपडेट के लिए लॉग इन कर सकते हैं www.ashmin.in और www.urdu.ashmin.in पर। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।